Hello, welcome to the 25th episode of our series Angrezi Seekhein, brought to you with support from Etihad Airways. In this series, we have together been learning how to speak in English in our day-to-day lives. नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है अंग्रेजी सीखें के 25वीं एपिसोड में। ये श्रृंखला आपको एतिहाद एयरवेज के सहयोग से लाई जा रही है। दोस्तों, हम इस श्रृंखला में अंग्रेजी कैसे बोलें ये साथ में सीख रहे हैं। Before we move on, let's take a quick look at the previous episode to recap our learnings. आगे बढ़ने से पहले हम एक झलक अपने पिछले एपिसोड्स की देखते हैं। Are you married? क्या आप शादीशुदा हैं? Yes, I am married. हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। No, I am still not married. नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। When are you planning to get married? आप कब शादी करने की योजना बना रही हैं? Not now. Maybe after a few years. अभी नहीं, शायद कुछ साल बाद। Very soon. I will most probably get married next year. बहुत जल्द, शायद अगले साल ही। Which ritual do you find the most attractive in a wedding? विवाह समारोह में आपको सबसे अच्छी रस्म क्या लगती है? Exchanging rings is the ritual I am quite fascinated by. अंगूठियों का आदान प्रदान वाली रस्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। In this episode, we will revise some of the basic phrases that you have learned so far which can help you in your day-to-day conversations with people. इस आखिरी एपिसोड में हम कुछ ऐसे बुनियादी वाक्यांशों का जिक्र करेंगे और बोलना सीखेंगे जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। Here is an informal greeting you can use when you meet new friends. If the person does not tell you their name, you can say your name first and then ask, and you? For example, hi, I am Nitika. And you? Or, hi, I am Nitika. And your name is? यह किसी से मिलने का एक अनौपचारिक तरीका है। यदि आप जब किसी से मिलते हैं और वो अपना नाम नहीं बताते हैं तो आप पहले अपना नाम बता सकते हैं, जैसे मेरा नाम अर्चना है, आप? या फिर आप कह सकते हैं मेरा नाम अर्चना है, आपका नाम क्या है? After you learn each other's name, it is polite to say, nice to meet you. For example, hi Archana, nice to meet you. एक दूसरे का नाम जानने के बाद आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, हाय नितिका, आपसे मिलकर अच्छा लगा। In order to find out which place someone is from, you can ask them, where are you from? For example, hi Archana, where are you from? ये जानने के लिए कि कोई व्यक्ति कहाँ से है, आप पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। You can answer this question with I am from and the name of the place. For example, I am from Nuh, Haryana. इस प्रश्न को पूछने के बाद आप उत्तर दे सकते हैं, मैं हरियाणा से हूँ। If you want to ask a person about their job, you can ask them, what do you do? For example, hi Archana, what do you do? ये जानने के लिए कि कोई क्या काम करता है, आप पूछ सकते हैं, आप क्या काम करते हैं? To ask someone about their hobbies or interests, you can say, what do you like to do in your free time? किसी को और बेहतर जानने के लिए आप उनसे उनके शौक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? If you want to keep in contact with someone you just met and need their phone number, you can say, what is your phone number? यदि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहते हैं तो मिलने के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका फ़ोन नंबर क्या है।
You can also replace the phone number with email ID if you wish to stay connected via email. यदि आपको लगे कि आप उनके संपर्क में रहना चाहते हैं तो आप उनसे उनका ईमेल भी मांग सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, क्या मैं आपका ईमेल ले सकती हूँ? If you want to thank someone, you can use the phrase I really appreciate. For example, I really appreciate all your help. यदि आप अनौपचारिक तरीके से किसी को धन्यवाद कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं आपकी सराहना करती हूँ। इसको कहने के कुछ और भी तरीके हैं। आप कह सकते हैं, मैं सचमुच आपकी सराहना करती हूँ। Or, thank you so much for cooking dinner. I really appreciate it. तो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए खाना बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी सराहना करती हूँ। When you want to hear someone's opinion on a topic, you can ask them, what do you think? For example, I am not sure whether I should go to Delhi or not. What do you think? यदि आप किसी विषय पर किसी की राय जानना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उदाहरण के लिए, मैं दिल्ली जाने की सोच रही हूँ, आपकी राय क्या है? If you suggest an idea or a plan, use the phrase, how does that sound, to find out what they think about it. यदि आप अपने किसी विचार या ख्याल पर किसी का सुझाव लेना चाहते हैं तो आप इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? For example, we could have dinner and then go for a movie later on. How does that sound? उदाहरण के लिए, हम साथ में डिनर कर सकते हैं और फिर मूवी देखने जा सकते हैं, आपका क्या ख्याल है? Or, let's hire a band to play music. How does that sound? एक और उदाहरण इस प्रकार से है कि हम संगीत के लिए एक बैंड को बुला लेते हैं, आपका क्या ख्याल है? If you like an idea or a phrase, you can respond to how does that sound with it sounds great. यदि ये सवाल आपसे कोई करे तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया विचार है, या मैं आपके विचार से पूरी तरीके से सहमत हूँ। If you do not understand what someone means, use the phrase, I do not understand. For example, sorry, I do not understand. This course seems very confusing. यदि आपको कोई कुछ समझा रहा हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको उलझन महसूस हो रही है, तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, क्षमा करें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये कोर्स बहुत उलझाने वाला लग रहा है। If you want someone to repeat a word, a sentence, or a phrase, ask them the question, could you repeat that please? To repeat means to say again. You can also say, could you say that again please? यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो बात कह रहा है उसको दोहराए या कोई शब्द को दोहराए, तो आप कह सकते हैं, कृपया आप अपनी बात दोहराएं, या आप पूछ सकते हैं, कृपया क्या आप अपनी बात दोहरा सकते हैं? We can say please either at the end of the question or right after you. For example, could you please repeat that? Or could you repeat that please? अपनी बात को विनम्र तरीके से कहने के लिए आप कृपया शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, कृपया आप अपनी बात दोहरा सकते हैं? क्या आप अपनी बात कृपया दोहरा सकते हैं? कृपया क्या आप अपनी बात दोबारा कह सकते हैं?
मुझे समझ में नहीं आया, कृपया एक बार और दोहराएं। When you understand the words one by one but not the phrase, you can use the question, "What do you mean?" to ask for its meaning. जब आपको अलग अलग शब्द तो समझ में आ रहे हो, लेकिन पूरे वाक्य का मतलब नहीं समझ आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं, आपका मतलब क्या है, या इसका मतलब क्या है। You can ask this whenever you are confused about what someone is telling you. यदि आप किसी भी प्रकार से भ्रमित महसूस कर रहे हो, तब भी आप पूछ सकते हैं, आपका मतलब क्या है, या इस बात का मतलब क्या है। If someone approaches you with a query, you can respond to them with, "How can I help you?" यदि कोई व्यक्ति आपके पास कोई प्रश्न लेकर आता है और आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो आप इस वाक्यांश का प्रयोग कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। For example, "Hi, this is Nitika. How can I help you?" उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास कोई फ़ोन आता है और कोई आपकी मदद लेना चाहता है, तो आप कह सकते हैं, हाय, मैं अर्चना हूँ, आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। If someone wants to see you but you are not yet ready, you can use the phrase, "I will be with you in a moment." यदि आपसे कोई मिलने आता है और आप अभी उनसे मिलने के लिए तैयार ना हो, या आप कोई काम कर रहे हो जो आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप विनम्रता से कह सकते हैं, मैं बस अभी एक पल में आपके पास आती हूँ। For example, "Hi, my meeting is running a little late. I will be with you in a moment." उदाहरण के लिए, यदि आप कहीं व्यस्त हों, आपकी मीटिंग चल रही हो और कोई आपसे मिलने आया, तो आप कह सकते हैं, क्षमा करें, मेरी मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई है, मैं अभी एक पल में आपके पास आती हूँ। You can also replace the word moment with minute. For example, "I will be with you in just a minute." आप पल के बदले मिनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं बस एक मिनट में आपके पास आती हूँ। इन एपिसोड को रेडियो मेवात पर सुनने के साथ साथ आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फ़ोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8685 904 904। अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहें तो आप हमें वो भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर 8395 904 904। हमें आशा है कि ये सीरीज़ आपकी बहुत मददगार रही होगी। धन्यवाद। Apart from listening to the episodes on Radio Mevat, you can also find them on Radio Mevat's Facebook, Twitter and YouTube channel. If you want to get in touch with us via phone, you can call us at 8685 904 904, or you can WhatsApp us at 8395 904 904. Thank you.